Good evening, Dr. Gupta. Thank you for taking out time to educate all of us on this day, which is celebrated as the World Heart Day. As we all know how important the heart health is and how crucial it is to for our well-being, and especially during COVID-19, we have realized the importance of taking care of our immunity in general and specifically heart. So we would like to know, some basic information about your expertise. And before that, I'd like to throw some light on your vast experience that has helped us, gather all the information from you. So Professor Dr. Gupta has been based in Apollo Hospital since 1998. He was in France before, in one of the most renowned hospitals. He is also the founder and course chairman for International Cardiology Teaching Course at the Indo-European Course on Revascularization, IECR, for young interventional cardiologists. It has also had European Board of Cardiology accreditation and collaboration of American College of Cardiology. Dr. Gupta has been affiliated with, the most renowned industry bodies, and he is also a fellow of Interventional Cardiology Rouen, France, which was in the period of 96 and 1998. He's a fellow of American College of Cardiology, FACC, fellow of European Society of Cardiology, FESC, fellow of Asia Pacific Society of Interventional Cardiology, FAPSIC, fellow of European Society of Percutaneous Coronary Interventions, FESPCI, fellow of Society of Cardiovascular Angiography and Interventions, FSAI, fellow of Indo-European Interventional Council, FIEIC, fellow of Cardiological Society of India, FCSI, and fellow of Indian College of Cardiology, FICC. Before joining Indraprastha Apollo Hospital in New Delhi, Professor Dr. Vivek Gupta has worked in the largest hospital of France, which is called the Hospital Charles Nicolle Rouen, from 1996 till 1998, with Professor Alan Kreiber, who is innovator of TAVI, which is transcatheter aortic valve implementation and world authority in the field of angioplasty and valvoplasty. That's a non-surgical technique in management of blocks in coronary arteries and valves of the heart. Professional experience till now, Dr. Gupta has performed over 10,000 coronary angiographies and more than 5,000 coronary angioplasties and stent implementation in India and abroad. He was instrumental in starting primary angioplasty, which is angioplasty during heart attack, and multi-vessel angioplasty and stent implementation, deploying more than 2 or 3 stents after coming back from France in India. He was also involved in a novel technique, which was with Professor Alain Kreiber during the time of innovation of the novel technique of transaortic valve implementation, that is expertise in non-surgical valve replacement, way back in 1996 to 1998. Thank you so much for your time today, Dr. Gupta. Thank you very much for a very nice introduction and more elaborate than I was expecting, a little less. But thanks, Anshu, for a very nice introduction. And that is true that I have been working long, and it has been actually a wonderful experience working with so many people in India and outside India, especially with Alan Kreiber, who is now the world authority on many things which he started, he innovated actually.
and I just received an email from him, and he's a very kind man, and I am trying to find some ways out to nominate him. Actually, he will be nominated for Nobel Prize possibly. So that's a Wow, very kind it's of him brilliant. to take his name during this introduction. So let's start our talk on, as you said, the World Heart Day. So World Heart Day is celebrated all over the world, which is actually the date given by World Heart Federation, and that is 29th of September. And the reason why this is being celebrated or whatever way you mark it out, because दिल की बीमारी बढ़ती जा रही हैं और किसी समय में कैंसर यूज्ड टू बी द नंबर वन किलर. अभी इस समय जो डेटा है उसके हिसाब से हार्ट डिजीज इज द नंबर वन किलर फॉर ऑल द ओवरऑल डेथ्स. ऑफ कोर्स वी आर फाइटिंग फॉर कोविड-19, दैट इज सेपरेट इश्यू. लेकिन जो और खास करके यंग लोगों में अभी देखा जा रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में, एशियन कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इधर अपना नेपाल, भूटान, जो सार्क कंट्रीज हैं उसमें खास करके 35 से 40 और 45 साल के लोगों में भी दिल की बीमारी काफी ज्यादा है. यूरोप और अमेरिका में दिल की हार्ट की बीमारी जो मोस्ट कॉमन इज एंजाइना एंड हार्ट अटैक, जिससे which leads to heart failure and sometimes sudden death, or sometimes it is a prolonged death over a period of few months or few years. वो अमेरिका और यूरोप में अभी भी 60 साल से 70 साल और 80 साल के बीच में हो रहा है. तो इसे मेजर कंसर्न कि हमारे कंट्री में, हमारे एरिया में, हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में दिल की बीमारी ज्यादा क्यों हो रही है. और इसी चक्कर में वर्ल्ड हार्ट डे में हम लोग कुछ बात करना चाहते हैं कि जिससे कि पब्लिक को, और खास करके जो आम जनता है, हमारे 135 करोड़ की जनता है, जैसे अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताते हैं, उन सबको जागरूक करना कि दिल की बीमारी ज्यादा ना हो. तो इसी बारे में हम बात करने के लिए आपके साथ जुड़े हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम टू हैव a small talk which will be live on Facebook as well as later on, as well as on YouTube. Sure. It's an honor for all of us to hear your opinion on this very important topic. So I think सबसे पहले we would like to know, why is World Heart Day celebrated? World Heart Day क्यों मनाया जाता है? जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने इसको तारीख अंकित की है. उसका रीजन यही है कि दिल की बीमारी बढ़ रही हैं और किसी तरह इसको अंकुश लगाया जाए, जिससे कि the whole purpose of the whole world community, especially the scientists and the cardiologists and the healthcare system, is to reduce the burden of hospitalization and also to reduce the burden of death. CVD death or CVD, cardiovascular disease morbidity, is equally bad, because जब हार्ट फेलियर का मतलब होता है कि हार्ट वीक हो जाए, तो ऐसे लोगों को रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है. जी. और 50% पेशेंट ऑफ हार्ट फेलियर, मैं साथ साथ बताना चाहूंगा, इस बार का मुहिम ESC का, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी का हार्ट फेलियर रहा है. और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी मुहिम चलाया है. मैंने एक वीडियो भेजा, शेयर किया उनके साथ में, कि हार्ट जो वीक हो जाता है उसमें 50% लोगों की मृत्यु 5 साल के अंदर हो जाती है, विच इज एक्चुअली वेरी बैड कंडीशन. तो इसीलिए वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, सो दैट इट्स नॉट सेलिब्रेशन एक्चुअली, इट इज एक्चुअली अ मार्किंग ऑन द कैलेंडर, so that people should become more aware about the heart diseases, heart symptoms. Absolutely. I think awareness on this topic will get us one step closer to a healthier heart. So I think now we would like to also know, what are the kinds of diseases that are found in the heart, and what are the diagnostics that are taken to find those diseases. Heart में कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं? देखिए, दिल एक बहुत ही छोटा सा पंप है बॉडी के अंदर. मैं एक छोटा से इसके साथ लेता हूँ. The heart is like this, and which is the center of the heart, center of the chest. थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ होता है. अभी थोड़े दिन पहले किसी ने हमारा इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा कि दिल होता तो लेफ्ट में है, लेकिन एक्चुअली राइट होता है. राइट मतलब दिल की बात सही निकलती है. तो बड़ा अच्छा उन्होंने स्लोगन था, मुझे याद आ गया. तो दिल, the heart is actually in the center of the chest, but it is little on the left side. So इसका काम क्या होता है? ये काम ये करता है कि हार्ट एक तरह का पंपिंग ऑर्गन है, like this, it keeps on pumping the whole blood to the whole body. अब ये पंप बचपन से बच्चा पेट में आता है, फीटल लाइफ में, तब चलना शुरू होता है, और जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक चलता रहता है. इन कॉन्स्टेंटली इट इज वर्किंग.
समथिंग वेरी वेरी इंट्रिगुइंग, एंड भगवान ने जो बनाया है, हार्ट नेवर स्टॉप्स। व्हेन यू स्लीप योर ब्रेन स्टॉप्स वर्किंग, नॉट स्टॉप वर्किंग, एटलीस्ट इज रेस्टिंग। जब आप घर में बैठे हैं तो आपका हाथ भी रेस्ट कर रहा है और बॉडी के बाकी अंग भी रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हार्ट नेवर स्टॉप्स। इफ इट स्टॉप्स द डेथ कम्स। व्हाई? बिकॉज जब हार्ट चल रहा होता है इट इज सप्लाइंग द ब्लड टू द ब्रेन। द सीट ऑफ लाइफ इज नॉट हार्ट, इज एक्चुअली ब्रेन। लेकिन जब ये कांस्टेंट जब सप्लाई कर रहा है, ब्रेन का टिश्यू जो होता है वो 3 से 6 मिनट के अंदर अगर ब्रेन सप्लाई बंद कर दी जाए तो पेशेंट का ब्रेन डेथ हो जाती है, एंड दैट इवन हार्ट कम्स बैक। यानी कि अभी डीसी शॉक लगा के हमने हार्ट को वापस भी ले आए, बट द लाइफ डज नॉट कम बैक। इसका काम होता है पूरी बॉडी को सप्लाई करना। अब इसको खुद को चलने के लिए इसके 3 नसें होती हैं जो इसके सरफेस पे होती हैं, दिखा रही है, और ये जो सरफेस पे नसें होती हैं ये एक्चुअली इस पूरे हार्ट की मसल को सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन, जिससे कि वो चलता रहे। तो दिस इज हाउ द हार्ट वर्क्स। दूसरे डायग्राम से दिखाऊंगा कि बीमारी क्या क्या होती हैं। सबसे कॉमन बीमारी होती है दिल का दौरा, यानी कि हार्ट अटैक। वो क्यों होता है? हार्ट अटैक का मतलब कोई अटैक नहीं कर दिया, किसी ने मिसाइल से अटैक नहीं कर दिया, हार्ट खुद को अटैक हो गया। एक्चुअली हार्ट सफर्स फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि कोई भी एक नस, ये हार्ट है, हार्ट की जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये नसें हैं जो कि सरफेस पे हैं। दीज आर एक्चुअली वेरी थिन आर्टरीज जो कि सप्लाई कर रहे हैं हार्ट की मसल को। अगर ये आर्टरी में ब्लॉक आ जाए, या तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से या क्लॉट बनने की वजह से, तब अगर ये ब्लॉक आता है तो हार्ट का हिस्सा काम करना बंद कर देगा, बिकॉज सप्लाई बंद हो गई। तो ऐसे केस में अगर ब्लॉक शुरुआत में आ जाए, यानी कि अगर पेड़ है, पेड़ का तना काट दीजिए, यानी कि मेन स्टेम, तो पेड़ पूरा गिर जाएगा। अगर शाखा काटेंगे तो पेड़ नहीं गिरेगा। अगर ब्लॉक बाई चांस शुरुआत की नस में आ जाए, यानी कि मेन स्टेम में, तो पेशेंट विल हैव सडन डेथ, एकदम रुक जाएगा हार्ट। अगर ये ब्रांच में आए, बगल में ब्रांच निकल रही है, इफ यू कैन सी द ब्रांच, अगर ब्रांच के अंदर कोलेस्ट्रॉल जम जाए या क्लॉट आ जाए, तो पेशेंट हार्ट विल स्टिल सस्टेन, ऑल्दो इट विल हैव सम chest pain, and patient reaches to hospital. So 50% patient do not reach hospital because there the supply is so much blocked कि हार्ट की मांसपेशियां एकदम काम करना बंद करती हैं, वो हार्ट फड़फड़ाता है और रुक जाता है, and cardiac arrest, and most of the time the patient is not in the hospital. So घर में हम लोग cardiopulmonary resuscitation देने की सुविधा होती नहीं है, and patient does not reach hospital. ये तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई हार्ट के बारे में कि जो मेन नस में ब्लॉक आता है। दूसरा, मैं हार्ट को खोल रहा हूं इस समय, आप देखिए हार्ट खुल गया। हार्ट के अंदर का स्ट्रक्चर क्या? हार्ट ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड भगवान ने सिस्टम बनाया। इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्चुअली ए मोटर इंजन और इंजन ऑफ द एयरक्राफ्ट। व्हाई? बिकॉज इसके अंदर ही हर समय चलता है इंजन। एयरक्राफ्ट के इंजन आपने रेस्ट कर दिया तो रेस्ट हो गया, तो चल रहा है। ये तो जिंदगी और मौत के बीच की सवाल। इसके अंदर हार्ट के अंदर 2 वाल्व होते हैं। अगर वैल्व में सिकुड़न हो जाती है तो वो अलग तरह की बीमारी होती है, उसको कहते हैं रोमैटिक हार्ट डिजीज, या दूसरी तरह की होती है एओर्टिक स्टेनोसिस। अभी आपने टावी का नाम लिया, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन। इसके अंदर जो एओर्टा निकल रहा है, इसके अंदर का जो वाल्व है उसमें सिकुड़न होती है 70 साल 80 साल की उम्र के बीच में, तो वो बीमारी होती है एओर्टिक स्टेनोसिस। उसका डॉक्टर क्रीबियर ने बिना ऑपरेशन के वाल्व बदलने का सिस्टम लाए हैं, जिसके इज द फादर ऑफ दैट। सो तो हार्ट की बीमारी हार्ट अटैक, तो दूसरा वाल्व की, और बाकी कुछ कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है जो बचपन से होती है, जन्मजात से। आपने सुना होगा दिल में छेद है। छेद क्या होता है कि हार्ट के 2 चैम्बर्स के बीच में, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल या राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल के बीच में जो डायफ्राम है, जो एक पर्दा बना हुआ, उसके अंदर छेद हो जाता है, वो जन्मजात होता है, उसका अलग। लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज नॉट रूमेटिक हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक एंड एंजाइना, जो कि हार्ट की नसों में होता है। तो ये है। तो और इसके आपने पूछा सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? अब सारे छाती के दर्द हार्ट अटैक नहीं होते। अगर मैं ओवरऑल देखें, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो 100 में से 30 तो चेस्ट पेन होते हैं, वो तो हार्ट के होते हैं। 70 तो ऐसे होते हैं जो लोग डर के मारे आते हैं, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, क्या करें, ईसीजी करा लेते हैं। अब देयर आर फ्यू क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ हार्ट एंजाइना। जो एंजाइना इज ए पेन विच इज कमिंग फ्रॉम द हार्ट। एंजाइना इज स्पेसिफिक वर्ड, दैट मीन्स पेन बिकॉज ऑफ हार्ट ब्लॉकेजेस इज एक्चुअली एंजाइना। वो क्या होता है? छाती के बड़े हिस्से में दर्द होना। बड़े हिस्से मतलब ऐसा नहीं पिन पॉइंट पेन हो रहा है, वो हार्ट का नहीं है, कभी नहीं हुआ। जिस लर्निंग फॉर एवरीबॉडी। अगर हार्ट का पेन आ रहा है और जा रहा है, 3-4 सेकंड के लिए हो रहा है, 10 सेकंड के लिए दर्द आया फिर चला गया,
दैट इज ऑल्सो नॉट एंजाइना। हार्ट का दर्द बड़े हिस्से में होगा और कम से कम 3 या 4 मिनट के लिए होगा। इसके एक्सर्शन के साथ शुरू होगा, खाना खाने के बाद भी शुरू हो सकता है और रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली एंजाइना पेन। और दिल का दौरा जब होता है उसका पेन बहुत सीवियर होता है और इतना पेन सीवियर होता है कि पेशेंट को कई बार स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, पसीने में नहा जाता है और कई बार सफोकेशन होता है, गला घुटता है, छाती में दर्द के साथ हाथ में चला जाता है। तो वो सिम्टम अगर हो रहे हैं वो हार्ट का है। हार्ट का दर्द कौन सा नहीं है? एनी पेन विच इज प्रिकिंग, अगेन आई रिपीट, इट इज वेरी शॉर्ट लास्टिंग, फ्यू सेकेंड्स, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम हियर पीछे चला गया, यहाँ चला गया, दैट इज नेवर हार्ट। तो ये कुछ सिम्टम होते हैं। जब पेशेंट आता है कार्डियोलॉजिस्ट के पास, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द हिस्ट्री। हिस्ट्री से कन्विंस हो जाता है डॉक्टर खुद, अगर कार्डियोलॉजिस्ट अच्छा खासा पढ़ा लिखा है तो वो जान जाता है ये एक्चुअली एंजाइना नहीं है, फिर भी वो कहता है ईसीजी करा लीजिए टू बी वेरी श्योर। तो ईसीजी इज द फर्स्ट टेस्ट टू बी डन, बट 90% times ECG is normal even if the patient is have heart disease. I tell you, केवल 10% में ECG खराब होता है। अब दिस इज वेरी, अभी कुछ लोग स्टैटिस्टिक एनालिसिस 70 से 90% टाइम्स ECG कैन बी नॉर्मल इवन विद हार्ट ब्लॉकेजेस। लेकिन पेशेंट को क्या है, डॉक्टर को पता होता है कि भाई ये आई एम नाउ डीलिंग विद हार्ट पेशेंट और नॉन कार्डियक पेशेंट, इफ यू हैव लॉट ऑफ, इफ यू हैव इनफ एक्सपीरियंस। फिर क्या करते हैं, ईसीजी नॉर्मल आ गया, कोई बात नहीं, आप फिर हम एक ब्लड टेस्ट करते हैं, मार्कर्स होते हैं, उनको ब्लड टेस्ट कंफर्म करते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम एक्चुअली जो एंजाइना पेन हो रहा है वो सीवियर एंजाइना है या इट इज ए नॉन मस्कुलर, सॉरी नॉन कार्डियक मस्कुलर। फिर एक तीसरी जांच होती है इकोकार्डियोग्राफी। लोग कहते हैं इको करा लीजिए डॉक्टर साहब पता लग जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा इको इज ए वेरी गुड टेस्ट। व्हाट इज इकोकार्डियोग्राफी? इट इज एक्चुअली अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। जैसे आपने पेट का अल्ट्रासाउंड होता है ना, इस तरह हार्ट का भी अल्ट्रासाउंड होता है, उसका स्पेसिफिक नाम दे दिया गया इकोकार्डियोग्राफी। तो ये 3 टेस्ट होने के बाद इकोकार्डियोग्राफी हार्ट अटैक में कंफर्म हो जाता है, लेकिन एंजाइना में कंफर्म नहीं होता। तो 3-4 टेस्ट इसी तरह के और भी हैं और मैं आगे बताऊंगा आपके बारे में कि आगे और क्या करते हैं। Sure. आपने ऑलरेडी इस क्वेश्चन पे थोड़ा हमें एनलाइटन कर दिया है, but we would like to know कि what are the types of chest pain that are related to heart. दिल, छाती की किस टाइप की दर्द हार्ट डिजीज को सिग्निफाई कर सकते हैं? मैंने बताया आपको, अगर छाती में बड़े हिस्से में दर्द होना चाहिए, अगर 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का दर्द है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये, तो वो दर्द बहुत छोटा जो एरिया में दर्द हो रहा है तो वो कभी हार्ट का नहीं होता। इट शुड बी एटलीस्ट ए लार्ज एरिया, एटलीस्ट 5-6 इंचेस एरिया होना चाहिए, यानी पूरी छाती चल रही है। कई बार छाती में जलन भी होती है, वो भी होता है, लेकिन आपने क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, कई बार पेशेंट को केवल एसिडिटी होती है, हार्ट का जो नीचे का हिस्सा है उसमें अगर हार्ट अटैक हो रहा होगा क्योंकि वो डायफ्राम से टच कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कई बार एसिडिटी के सिम्टम होते हैं। लॉट ऑफ टाइम वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, रात भर उनको जलन हो रही थी, वो जेलोसिल और डाइजीन पीते रहे और सुबह एकदम घबराहट हुई और फिर अस्पताल लेके गए एंड देन समबडी इज फाउंड डेड, ब्रॉट डेड। तो कई बार एसिडिटी के जो सिम्टम होते हैं वो इतना मिमिक करते हैं कार्डियोलॉजी में, इसलिए बहुत जरूरी है कि एसिडिटी अगर प्रोलॉन्ग्ड हो रही हो तो प्लीज कंसल्ट ए कार्डियोलॉजिस्ट। After how many, like what is the duration that we should wait during acidity symptoms and then get alert? Very good, very valid question which is not coming to my mind. अगर एसिडिटी है तो आपको एंटासिड पीने से आधे घंटे के अंदर आराम मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, जैसे पेंटोप्रोजोल है, रेनिटिडीन है, कई दवाइयां हैं वो खाते हैं, एसिडिटी सबको पता है, और डकार आ गई है उसके बाद भी दर्द नहीं ठीक हो रहा, घबराहट नहीं हो, और साथ में घबराहट भी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में यू शुड डू एन ईसीजी, टॉक टू अ कार्डियोलॉजिस्ट। So, which means within an hour after taking acid medication, anti-acid medication. Even Thank less, you. half an hour. And so, what is angiography? Angiography होता क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अब तो सबको, पब्लिक को पता है एंजियोग्राफी। एक्चुअली जब मैं आया था 1998 में तब लोगों को एंजियोप्लास्टी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब तो एवरीबॉडी नोज कि एंजियोग्राफी किसी ना किसी फैमिली मेंबर की कहीं ना कहीं एंजियोग्राफी हो चुकी होती है। लेकिन एंजियोग्राफी एक ऐसी जांच है जो हार्ट की नसों में ब्लॉकेज पता करती है। आई विल शेयर वन स्क्रीन and then you will know ki what is actually angiography. I think I have got some screen to share. Let me see.
If you see this image, can you see an image? Yes, yes, now we can. तो ये मैंने आपको बताया, अब ये डायग्राम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये हाँ जी। हार्ट एक पंप है जो पूरे बॉडी को सप्लाई कर रहा है। हार्ट की ये 3 नसें हैं जो हार्ट खुद को सप्लाई कर रही है। These small vessels, red color, जो मैं जिस पर कर्सर जा रहा है, these are actually blood vessels which is supplying the heart. जो हार्ट की नसें हैं, इन्हीं में ब्लॉक आने की वजह से हार्ट अटैक होता है। अब ये पिक्चर आप देखिए लेफ्ट साइड में, ऑन द राइट साइड, ये हार्ट की एंजियोग्राफी से हमने नसों को देखा है और नसें जो काली काली है वो हार्ट है। और अगर इस वाली पिक्चर को देखें, इफ यू कंसंट्रेट, बीच में नसों में पतली हो गई है, दिस इज एक्चुअली एंजियोग्राफिक पिक्चर which is confirmed that there is a blockage. इससे कंफर्म हो गया ब्लॉकेज है। इसी तरह से आप ये पिक्चर देखिए, ये वाली नस एक ब्रांच है जो कि सर्कमफ्लेक्स है, आर्टरी है, इसके अंदर ब्लॉकेज है। ये राइट वाली नस है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप देख रहे हैं कहीं भी पतली नहीं हुई है, बिल्कुल नॉर्मल चली आ रही है, राइट वाली है। और ये नस देखिए, ये पतली हो गई, यहाँ पे एलईडी है, इसको 90% ब्लॉकेज है। तो इमेज एंजियोग्राफी की इमेजेस, दीज आर द इमेजेस ऑफ एंजियोग्राफी 1 2 3 4 5 6 7। जैसे आप किसी की फोटो खींचते हैं तो अलग अलग व्यूज देते हैं, कैमरा को इधर घुमाते हैं, इधर घुमाते हैं। इसी तरह से हम एंजियोग्राफी करते हैं। करते कैसे हैं? यहाँ पे आपको देखें, ये हार्ट की नस है, यहाँ पे जो ग्रॉइन है, ग्रॉइन मतलब जहां पे जांग है, यहाँ से पतला सा ट्यूब जाता है, मोस्टली राइट साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड है। और जो यहाँ पे घूमता हुआ हार्ट की नस में हम कैथेटर डाल के, यहाँ पे कैथेटर डाल के यहाँ पे हुक कर देते हैं। दिस इज कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। यहाँ पे जब हुक करते हैं तो हम पे डाई डालते हैं इंजेक्शन से, एंड दैट डाई गोज एंड गिव्स अ पिक्चर लाइक दिस। द डाई इज गोइंग हियर एंड द पिक्चर इज कमिंग लाइक दिस, व्हिच इज अ फ्लोरोस्कोपिक पिक्चर। तो दिस इज नॉर्मली डन विद इन, मुझे लगता है 3 या 4 मिनट करने में। पेशेंट को कोई पेन नहीं होता। ये पिक्चर देख रहे हैं, दिस इज एंजियोग्राफी लैब। दिस इज द एंजियोग्राफी लैब जहां पे हम करते हैं। आई विल शेयर वन मोर पिक्चर, आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस एंड आई विल शेयर अनदर पिक्चर व्हिच इज myself doing an angiography. Let me just share this. Another view, which is this one. So this is how I am doing an angiography here, and then you can see this is a fluoroscopic view. I am staying here. It's very small. एक छोटा सा कट लगाते हैं और अदर कट भी नहीं होता, इंजेक्शन होता है। ये पेशेंट लेटा हुआ है और यहाँ पे ये एक हमने यहाँ ट्यूब, if you can see, there is a very small tube which is a puncture done into the artery. And this is जहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया देते हैं। और ये this is my staff and other people, Dr. Chinmay Gupta and other people here. And then we will, this is our team. If you see the team here, can you see the team here? Yes. And then how we take the pictures. This is the fluoroscopic picture you're seeing it. And this is how, I don't know, can you see the video? Yes, yes, I can. So this is how the injection is being done. और ये नस के अंदर फ्लो आ रहा है, जो काला काला फ्लो आ रहा है वो एक्चुअली नसें दिख रही हैं। इसको रोकते हैं। If you can see, this is an artery, a lady, and this is another view, and there is no blockage in this. But I will show you. This is the normal, and this on this side. This is normal. Mild plaquing. So this is what I am showing you, almost normal angiography which does not require angioplasty. साथ साथ हम किडनी की नसें भी देखते हैं, the renal artery angiography. There we can always say that the patient of angina may not have critical blockage. Very important for the audience to know that all patients of angina may not have critical blockages. This patient is by enrolling medical treatment. And actually this is a microvascular angina in a patient with diabetes in female. Microvascular angina is very common in patients of female. More common in females as compared to males, and this happens. So I come back now to the meeting. So you have understood that angiography is a test which confirms whether there are block or not. This was a patient where उसको angina हो रहा था, लेकिन उसके minor blockages निकले। कुछ लोगों को फोबिया होता है। मुझे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपको ये दिमाग में होता है कि एंजियोग्राफी कराएंगे तो ब्लॉकेज निकल आएगा और कहीं ना कहीं बाईपास एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़ेगी। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। अभी जो मैंने केस दिखाया उसके अंदर एंजाइना हो रहा था, लेकिन उसको हमको माइनर ब्लॉकेजेस हैं, लेकिन उसका एंजाइना का कॉज माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना है। यहाँ पे ना बाईपास की जरूरत है ना एंजियोप्लास्टी की जरूरत है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। देयरफॉर एंजियोग्राफी का फोबिया दिमाग से निकाल देना चाहिए।
It is a 5 minutes procedure. It is completely painless. It is 99.9% safety in a good hospital. It is safer than crossing the road across the Apollo Hospital or anywhere else. So अगर जरूरत है, please don't ignore it. मैं एक एग्जाम्पल दूंगा अभी, क्योंकि परसों की बात है. एक पेशेंट कोविड से रिकवर हुआ, कोरोना से, और उसको कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं थी. बट द रेफरिंग डॉक्टर, हु इज माय फ्रेंड, डॉक्टर संजय पांडे, आई कैन टेक हिज नेम बिकॉज ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड. उसके कजन ब्रदर था, तो उसने कहा डॉक्टर विवेक तुम इसको सब कुछ चेक करके भेजना, आई डोंट वांट हिम टू हैव एनीथिंग मिसिंग आउट. मैंने कहा क्योंकि कोविड में भी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, कोरोना आर्टरी डिजीज में हार्ट की क्लॉटिंग बढ़ जाती है. तो मैंने आई साइलेंटली एंड वेरी थोड़ा सा, क्योंकि क्लासिकल इंडिकेशन नहीं था, क्योंकि उसके चेस्ट पेन नहीं हुआ था, तो मैंने उससे पूछा उसके पेशेंट से कि शुड आई डू एंजियोग्राफी इफ यू डोंट माइंड. कहता है डॉक्टर साहब जो आप करिए वो ठीक है. I did an angiography and to my utter surprise, जैसे ही मैंने एंजियोग्राफी शॉट लिया, he had such a severe left main, तो मेन तने में he had a disease in the left main artery which could have actually lead to sudden death अगर वापस चला जाता. और साथ में राइट वाली कॉर्नरी आर्टरी जो पीछे की तरफ दिखाई, उसके अंदर 95%, 80%, 95%. दिस वाज डे बिफोर यस्टरडे. मैंने शाम को ही बैलून पंप लगाया. I told my doctor, जो फ्रेंड हमारा है, कि मैं इसको ये निकला है, and the family was surprised. I was equally myself surprised. So sometimes there are surprises. कोविड में तो एंजियोग्राफी is a life saving test. अगर हम इसकी एंजियोग्राफी ना करते, I am quite sure, finally it's a God which is final, but these patients do not survive. थोड़ा सीढ़ी चढ़ता घर जाके, ये ज्यादा खाना खा लेता, उसको सीवर एंजाइना होता, क्लॉटिंग होती, and he would have not reached hospital. So this is the importance of angiography. Therefore it's not डराने की बात है, लेकिन साथ साथ मैंने आपको वो भी केस दिखाया जहां बिल्कुल एंजियोग्राफी नॉर्मल है, तो यू आर सुकून मिल गया. एंजियोग्राफी नॉर्मल, यू आर वेरी हैप्पी. तो सबसे पेशेंट तो सेलिब्रेट करता है बाहर. हमने कहा शैंपेन की पार्टी मत करना, you can celebrate with whatever you want, but once you have a coronary angiography. अभी एक पेशेंट आया मेरे पास वाराणसी से. एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ही एक्चुअली शी हैड एन हार्ट अटैक. तो उसको मैंने जैसी एंजियोग्राफी करी एंड आई फाउंड अ माइनर प्लाकिंग. मैंने बाहर आके कहा अरे बॉस, ही वाज सो हैप्पी, आई मीन द हस्बैंड एंड आल्सो द ब्रदर ऑफ द हस्बैंड हु ब्रॉट दिस पेशेंट. मैंने कहा यू शुड सेलिब्रेट, कोई एंजियोप्लास्टी जरूरत नहीं है. तो बोथ द थिंग्स आर देयर. एक्चुअली बोथ द थिंग्स आर, हेलो जस्ट 5 minutes. बोथ द थिंग्स आर देयर. एक्चुअली जो दोनों चीज हो सकती हैं. You can lead to surprises which is life saving, at the same time it can lead to normal angiography which is life assuring. Wow, that is was very well put. You know, such a complicated topic, but you have helped us understand it so well. Now, when should we when should we get angiography done? Angiography कब किया जाता है? देखिए, ये आपने पहले बता दिया मैंने कि कैसे करी जाती है, लेकिन कब करनी चाहिए. अगर पेशेंट के ईसीजी खराब है, हाँ जी, श्योरली एंजियोग्राफी करनी चाहिए. पेशेंट को ट्रेडमिल टेस्ट कराया हमने, जो कि टेस्ट करते हैं, उसमें एबनॉर्मलिटी आ जाए, एंजियोग्राफी इज इंपॉर्टेंट. हार्ट अटैक जो पेशेंट हैं, पहले चाहे 2-3 साल पहले भी हुआ है और चेस्ट पेन फिर से आ गया हो, मैं तो कहता हूँ जिसको भी हार्ट अटैक हो चुका है, और कई बार एंजियोग्राफी मिस हो जाती है क्योंकि छोटे शहर में है, उसको पैसा नहीं है, ऑल हार्ट अटैक पेशेंट शुड हैव एंजियोग्राफी डन. और अगर चेस्ट पेन, कार्डियोलॉजिस्ट को लग रहा है दिस चेस्ट पेन इज एंजाइना, जैसे मैंने अभी इमरजेंसी में एक पेशेंट देखा, उसको एंजाइना हुआ, उसको कभी भी एंजियोग्राफी इग्नोर नहीं करनी चाहिए. एंजियोग्राफी शुड ऑलवेज बी डन. बट अगर नॉन कार्डियक पेन है और कार्डियोलॉजिस्ट इज फुल्ली कन्विंस्ड कि हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर देयर इज नो नीड टू डू एंजियोग्राफी. बट अगर एंजियोग्राफी बताई गई है तो करना जरूरी है. अगर नहीं करेंगे तो वी आर प्लेइंग विद आवर लाइफ. Sure. So angiography actually sounds very simple, you know, in a way that it should be more widely accepted. लोग angiography से डरते क्यों हैं? Why are people scared of angiography? ये बड़ी बात है. यही प्रॉब्लम है कि इसीलिए हमारे पेशेंट्स में पूरी तरह इलाज नहीं हो पाता है. दिस इज नॉट ट्रू फॉर यूरोप. यूरोप में डॉक्टर लिख दिया एडवाइस एंजियोग्राफी, ही विल अंडरगो. उसके 2 रीजन है. एक तो हमारे कंडीशन ये है कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट है और प्राइवेट हॉस्पिटल इज नॉट फ्री, और लॉट ऑफ पेशेंट डू नॉट हैव इंश्योरेंस. एक तो ये रीजन है. दूसरा, लोगों को यही डर है कि
अगर एंजियोग्राफी कराई तो हमको एंजियोप्लास्टी ना करानी पड़ जाए, बाईपास ना करानी पड़ जाए. माय ओन फैमिली रिलेशनशिप, विदाउट नेमिंग एंड विदाउट टेलिंग दिस, मैंने कहा एंजियोग्राफी कर लो कि अगर एंजियोग्राफी हो तो एंजियोप्लास्टी ना करनी पड़ जाए, इसलिए अभी अवॉइड करो. मैं कहता हूँ चाय है, हम चाय पी रहे हैं ये, और इसको ढका हुआ रखा है और अंधेरे में हम पीते रहे विदाउट चेकिंग दैट देयर इज मक्खी है कि नहीं है. तो एंजियोग्राफी समथिंग टेकिंग ऑफ द लिड एंड चेकिंग बिफोर taking the tea. That means when you are working out and doing your work, वो आपको हार्ट में पेन हो चुका है, अब उसके बावजूद भी ढकी हुई चाय पीते जा रहे हैं. या घर के अंदर दूसरा एग्जांपल देता हूं, घर के अंदर आप सो रहे हैं, दूसरे कमरे में आवाज आती है. द टू पॉसिबिलिटीज, या तो आपके यहाँ वैसे तो आजकल चूहे होते नहीं घर में, लेकिन आई एम टॉकिंग ऑफ जनरल पब्लिक, या तो चूहा आया उससे बर्तन गिर गया, या कोई चोर आया है. अब ये सोच के कि चोर ना निकल आए, अब चेक नहीं करो क्या, जस्ट बिकॉज यू फील कि हमारे ब्लॉकेज ना निकल आए, इसलिए लोग एंजियोग्राफी नहीं कराते. बट दैट ब्लॉक कैन बी डेंजरस, ही कैन हैव सडन डेथ. यू अंडरस्टैंड? चोर चोरी करके ले जाएगा तब थोड़ी आप चोर को चेक करोगे. वंस योर हार्ट हैज सफर्ड अ हार्ट अटैक, उसके बाद एंजियोग्राफी कराई तो या यू मे लूज द लाइफ. व्हाट आई मीन टू से, एंजियोग्राफी टेस्ट इज अ लाइफ सेविंग टेस्ट. अभी तक ये वर्ड यूज नहीं होता. लाइफ सेविंग प्रोसीजर यूज होते हैं. बाईपास इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर, एंजियोप्लास्टी इज अ लाइफ सेविंग प्रोसीजर, बट एंजियोग्राफी इज अ टेस्ट which is life saving. Please don't ignore it and don't neglect it. Thank you so much. How do we prevent heart disease? That's very important. But before that, I would like to share one or two more slides or other pictures. What is angioplasty? I would like to show you something, angioplasty, which is done by me, especially the life-saving one. So this is, I will show you this patient. I'm sharing the slide, just a minute. So do you see the screen now? Yes. So this is myself and Dr. Fayaz and Dr. Chinmay Gupta, and this is a very interesting patient. Before I conclude and tell you the prevention, because it's a long video now. So this was a patient who came to Apollo Hospital, and this is, I think, 2017. And he was actually rejected by another cardiologist that he will not take up this case because he was having already cardiac arrest. But I took a challenge. I thought कि इसको बचाया जा सकता है. He was young, 35-year-old male only, and he had a heart attack. And he's an auto rickshaw puller. Apollo nearby hospital था. जब पेशेंट बाद में अब तो आता है, वो कहता है कि मेरे साथ जो आदमी था वो तो ये चेक कराने आया था कि जिंदा है कि नहीं है, चलो चेक करा लें, 7,000 रुपए जेब में पड़े हुए, 7,000, एटलीस्ट ये पता लग जाएगा कि जिंदा है कि नहीं है. He was lucky man. So I got a call. I was sitting here in my chamber जहाँ मैं बैठा हूँ. I thought let me do this case. और हमने जब केस किया तो सबसे पहले हमने इसको एओर्टिक इंट्राएओर्टिक बलून पंप लगाया, which is the life saving. इसका ECG दिखा रहे हैं. I will show you only few videos. This is the intra-aortic balloon pump, life saving machine. इसको लगाने के बाद फिर हमने इसकी एंजियोग्राफी करी. ये इसकी एंजियोग्राफी में 99% नस ब्लॉक थी. उसके अंदर से क्लॉट निकाला मैंने. सॉरी, आपको वीडियो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. इसके अंदर से क्लॉट निकाला मैंने. हार्ट की नस से क्लॉट निकालना इज नॉट, इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू. एवरीबॉडी कैन नॉट डू इट. दिस इज छल्ली. इसमें इसके अंदर क्लॉट निकाला स्पेशल मशीन से हार्ट की नस के अंदर से, और क्लॉट निकालने के बाद हमने स्टेंट लगा दिया. और स्टेंट लगाने के बाद ये पूरी नस पूरी खुल गई जो कि बंद थी पूरी. दिस आर्टरी वाज ऑक्लूडेड 100%, 99%. सो उसके बाद आर्टरी खुल गई. ही वाज ऑन वेंटिलेटर. इफ यू सी दिस पिक्चर, पेशेंट वाज ऑन वेंटिलेटर. दिस इज वेंटिलेटर मशीन. This is an ICU team, anesthetist, myself, Dr. Chinmay Gupta, and then technicians. And then after 3 days, we are seeing this patient in the ICU. This is a patient.
3 days in the ICU. And then he's discharged. He's taking food. He was pulseless. He was pulseless. And then he was discharged. कोई ventilation खत्म हो गया. He's fully conscious now. So this was the team which celebrated the discharge. So this is what I want to tell you. These are the patients which actually give us, there was not only life given to him, but it was sort of a adrenaline. हम लोग को भी जो खुशी होती है ना इस पेशेंट, इस तरह के पेशेंट को इलाज करके, he keeps coming to us. और वो अभी भी कहता है, मैं ऑटो रिक्शा चलाता था, मैं तो अपोलो के पास था. Now he is a lucky man. The person who was with him, he suddenly fainted in the while he was taking the auto rickshaw. उसने फोन किया अपने मालिक को कि मैं इसको क्या करूं. उसने कहा कि अपोलो अस्पताल बगल में है. He cannot afford, I mean, private hospital. उसने कहा 5-6 हजार मेरे पास 7 हजार पड़े हैं. Let me check whether he is alive or not. And now still living. So he says, so angioplasty is a life-saving procedure. Angiography is a life-saving investigation. अब आपने एक बताया था कि prevention कैसे करेंगे. Now I think wind up within few minutes. Prevention is best is stress-free life, which is not easy. आज के ज़माने में स्ट्रेस बढ़ रहा है. तो मेंटल पीस लाने के लिए अभी लोग कहते हैं योगा करिए, बट आई थिंक इफ यू स्लीप वेल 7 आवर्स मिनिमम. कुछ लोग 3 घंटे सोते हैं. हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं 3.5 घंटे में फ्रेश हो जाता हूँ. लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल रिक्वायर 7 आवर्स स्लीप, बट डोंट डिप्राइव, शुड नॉट बी स्लीप डिप्राइव्ड. नंबर 1. सबको पता है डायबिटीज है तो कंट्रोल करिए, हाई ब्लड प्रेशर है तो इग्नोर मत करिए, कोलेस्ट्रॉल है तो चेक करते रहिए, उसको दवा खाते रहिए. साथ साथ आपको रेगुलर चेकअप, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, हर साल में एक बार कराइए. You will not miss, otherwise you will be missing your high blood pressure, you will be missing your diabetes, you will be missing your cholesterol levels. Exercise has a very important role to play. हम लोग को टाइम नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग जगते सवेरे कि मैं मॉर्निंग वॉक जा रहा हूँ. आजकल कोविड में नहीं जा रहे हैं. स्लीप के at the expense of sleep, don't take exercise. You can do exercise any time of the day, but of course you should not be full stomach. Exercise, lifestyle modification. बाहर का खाना, junk food is very bad because junk food में जो oil use होता है ना, वो high cholesterol LDL को बढ़ाता है, HDL को कम करता है. So one should avoid junk food. Ask your children not to take too much of junk food. Junk food मतलब बाहर का बना. Junk food क्या होता है? What is junk food? Fast food है. उसमें जो oil होता है, they recycle the oils. बाहर के समोसे हैं, ये सब कचौड़ी है, ये भी खराब नुकसान करते हैं. लेकिन जो और जगह बन रहा है और जो फ्राइड ज्यादा आ रहा है, ट्राई टू अवॉइड द फ्राइड फूड्स. घर का देशी घी भी खा सकते हैं आप. आई एम नॉट सेइंग दैट नो, आई एम नॉट सेइंग नो टू द ऑयली फूड्स. यू कैन ईट फूड. आप देशी घी इज नॉट सो बैड, बट ऑफ कोर्स रिफाइंड ऑयल्स आर लिटिल बेटर. डोंट रिसाइकिल योर जो कुकिंग मटेरियल होता है. एक बार हो गया तो उसको फेंक दीजिए. इट्स नॉट इजी, but it's very important. Exercise, control of blood pressure, control of diabetes, happy life, thinking and praying to God. भगवान को हमेशा याद रखिए. मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, क्योंकि that will take away at least 50% of stress. If you believe in God, क्योंकि भगवान को आप मानते हैं तो आपकी हर परेशानी ठीक हो जाएगी. So you should be a firm believer of God. Reduce your anxiety levels. Don't take too much of alcohol. Although alcohol के लिए बड़ा controversial है, but smoking is very bad. Avoid smoking. Once in a while is okay, but smokers normally छोड़ नहीं पाते हैं. So smoking is bad. So this is how the things work, and I think this is time we should wind up this video. It's a long video, and anything which is coming to your mind, I'm ready to answer. No, I mean, thank you so much. आपने सारे important topics पे को touch किया है, which is going to be very helpful for us to understand the heart health, and hearing real examples that have benefited from your work, as a cardiologist, is inspiring beyond words.
So thank you so much. I will recall one more moment when I was doing MD medicine in King George, Lucknow. I've been topper all through. I've topped in fact UPPMT also. So उस समय 19 it was early 90s, so उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, खास करके मेडिकल कॉलेजेस में तो ना एंजियोग्राफी होती थी ना एंजियोप्लास्टी होती थी, तो यू आर हार्ट अटैक के पेशेंट को हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट देते थे. दिस पर्सन कोलैप्स्ड इन द आईसीयू. ही वाज जस्ट बीइंग व्हील्ड विद द व्हीलचेयर एंड आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ एमडी. तो एवरीबॉडी नोज की द इंपॉर्टेंस ऑफ शॉक, बट कई बार शॉक भी नहीं अवेलेबल होता है. पेशेंट इज कोलैप्सिंग on the bed, on the right on the floor. So one patient, उसको सबसे मैं आप पब्लिक को बताना चाहूंगा what can save life. Suppose somebody is collapsing, that means his heart has stopped. Sudden हुआ अगर तो, if you're in the train, on the flight, or on the door, on the road, or somewhere, the best thing, you can't have DC shock. You don't try to put it, or mouth to mouth breathing is secondary. Just give a big thump on the chest of that patient lying on the floor. That is equivalent to, don't think that he will cry. So this is what I did. मैंने उसको कस के घुसा मारा और कस के उसको पंप किया. The heart which has stopped, suddenly he gets electrical shock and starts coming back. वो चिल्लाने लगा. He was not talking at all. Then he started paining because his heart had come back and he became conscious. So this is the way you can save life. I still remember because I felt very good that I could do a big thump and he came back. So this is not angioplasty, but this is immediate treatment which can be given. बाकी तो पंप करना और ये सब करना, CPR, that is not so useful unless the heart comes back. But अगर एक बार आ गया, then of course thumping the chest, which is another, मैं अलग training session लूँगा इसका, how to do it, then mouth to mouth breathing or something like that. All those things are more complicated, but just give a big घूसा मारिए छाती में, 2-4 बार मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. उसके चाहे rib break हो जाए, don't worry. His ribs are broken, but he will be alive by this big thump. That's amazing. That's a very important point that you've touched upon, and that's going to be helpful for all of us to know. So thank you so much for giving us your valuable time and sharing your knowledge and experiences with us on this day, World Heart Day. Any last words from your side? खुश रहने के तरीके बड़े मुश्किल हैं, वो अगली बार लेंगे उसमें. लेकिन अगर आप खुश रहते हैं, जो कि आसान नहीं है आज के समय में, किसी को पैसा नहीं है, किसी के बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा रही है, I'm talking of general population. हम लोग तो we are very privileged people talking on the computer, sitting in under air conditioner. तो जो गरीब लोग भी हैं, अगर वो खुश रहें और जो है उसमें संतुष्टि करें, तो दिल की बीमारी से आप बच सकते हैं. और दिल की बीमारी जो होती है उसको बचाने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे जो हम लोग सेलिब्रेट या मानते हैं या करते हैं, तो लास्ट वर्ड इज बी हैप्पी एंड बिलीव इन गॉड. दैट्स ऑल. बी हैप्पी, ट्राई टू बी हैप्पी एंड बिलीव इन गॉड. गॉड इज फाइनल एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ यू, चाहे कोई भी मिजरी हो, एनी मिजरी. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इफ यू आर ऑनेस्ट, अगर आप जब दिमाग कुछ गड़बड़ करें तो दिल की बात सुनिए. दिल मतलब कुछ भी गलत काम करने का मन करता है किसी लोगों का कि चलो शॉर्ट अर्न मनी है, छोटी जल्दी पैसे, जल्दी अमीर बन जाए. आपका दिल जरूर सही बोलेगा. दिल मतलब दिल बोलता नहीं है, अंदर की अंतरात्मा आपको बोलती है. व्हाट इज दैट इज, जो हम लोग दिल की बात बोलते हैं, दिल की बात ये है. मैं दिल की बात बोलता हूँ तो दिल आपको बताता है कि ये गलत है, सही है. एवरीबॉडी नोज दैट दिस समथिंग इज रॉन्ग, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस नॉट एथिकली करेक्ट, दिस नॉट मॉरली करेक्ट. अगर आप दिल की बात सुन के काम करेंगे तो आप ज्यादा खुश रहेंगे. दिमाग तो इधर उधर घूमता रहता है, which will keep on diverting you. The people who are stealing money, those who are doing fraud, those who are doing crimes, देखिए वो खुद भी जानते हैं कि दिल से गलत काम कर रहे हैं. तो दिल की बात सुनिए और खुश रहिए. This is my last word. Thank you, Anshu, for giving me this opportunity to talk with you. Thank you.